Good morning, my dear student. Today we are going to discuss the class 12th history chapter Framing the Constitution. My dear student, if you remember my previous class where I told you the topic, the will of the people, in this topic we discuss about the statement of communist leader Somnath Laidi. The question of Somnath Laidi was कि द कम्युनिस्ट जो पार्टी के लीडर्स थे उनका मानना था कि अभी भारत में अंग्रेजों का शासन है तो संविधान सभा अंग्रेजों के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकती है। भारत जो संविधान सभा का निर्माण कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो संविधान का निर्माण कर रही है वो वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा फ्रेम की गई है। उन्हीं की कार्य योजनाओं पे कांग्रेस काम कर रही है। कहते हैं कि सोमनाथ लाहिरी saw the dark hand of the British imperialism hanging over the deliberation of the Constituent Assembly. He thus urged the member and the Indian in general to free themselves from the influence of imperial rule. In the winter of 1946-7, the Assembly deliberated. The British were still in India and interim administrations headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could only operate under the direction of the Viceroy and the British government in London. Lahiri exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British would like to be worked out. That was the question of Lahiri. But Pandit Jawaharlal Nehru answered him very much interesting way. Nehru admitted the most nationalist leader had wanted the different kind of Constituent Assembly. It was also true a sense that the British government had hand in its birth and it had attached certain conditions within which the assembly had to function. But emphasized Nehru, you must not ignore the sources from which these assembly derives the strength. Nehru added, government do not come into being by state paper. Government are in fact the expression of the will of the people. We have met here today because of the strength of the people behind us, and we shall go as for the people, not any party or group, but the people of whole shall wish us to go. We should therefore always keep in mind the passion that lie in the heart of the masses of the Indian people and try to fulfill them. The Constituent Assembly was expected to express the aspiration of those who had participated in the movement for the independence, democracy, equality and justice were ideals that had become intimately associated with the social struggle in India since the 19th century. When the social reformers in the 19th century opposed the child marriage and demanded that widow be allowed to remarry, they were pleading for social justice. When Swami Vivekananda campaigned for a reform of Hinduism, he wanted religions to become more just. When Jyotiba Phule in Maharashtra pointed to suffering of the depressed caste or communist and socialist organized worker and peasants, they were demanding economic and social justice. The national movement against a government that was seen oppressive, that the illegitimate by the inevitable the struggle for the democracy and justice for citizen right and equality. This was the answer of Pandit Nehru. सोमनाथ लाहिरी ने जो जवाब दिया उसका उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में जो संविधान का निर्माण हो रहा है उसमें अंग्रेज भारत में उसको संविधान निर्माण करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार
संविधान के गठन में उसका काफी हाथ था। उन्होंने संविधान सभा के काम काज करने की कुछ शर्तें बनाई, लेकिन आपको उन स्रोतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। जब वो कहते हैं कि सरकार सिर्फ सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। कितनी बड़ी बात कहते हैं वो कि सरकार सिर्फ सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की अभिव्यक्ति होती है। हम यहां इसलिए जुटे क्योंकि हमारे पास जनता की शक्ति है। हम इतनी दूर तक जाएंगे जितनी दूर तक हमारी जनता हमको ले जाना चाहेगी। वो जनता किसी भी पार्टी, किसी भी ग्रुप, किसी भी समूह से भले ही क्यों न संबंधित हो, लेकिन वो भारत की जनता है। इसलिए हम भारतीय जनता के दिलों में समाई जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उन भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखते हुए अपने काम को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अपना 100% कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन को करने में लगाना चाहिए। और फिर वो कुछ प्राचीन भारत में हुए जो 19th सेंचुरी में हुए जो सोशल रिफॉर्म थे, उनके ऊपर वो बातें करते हैं कि किस तरीके से जो भारत में सुधार हुए हो 19th सेंचुरी में, जो समाज सुधारकों ने भारत में समाज सुधार का काम किया। जैसे कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट को खत्म किया गया, विडो रिमैरिज के लिए कानून बनाए गए। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए जो प्रयास किया, ज्योतिबा फुले ने डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे, उनके साथ जो सोशल अनजस्टिस होती थी, उसके लिए क्वेश्चन किया, उठाया, उनके लिए अच्छा प्रयास किया। साथ ही साथ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इन सारी चीजों को समाहित करते हुए संविधान के निर्माण के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। वो इन सभी चीजों को वो कहते हैं कि हमें उन सब की पीड़ा, हमें उन सब के योगदान, उन सबको एकजुट करते हुए मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए। और कहते हैं कि जो ये दमनकारी सरकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र और न्याय का, नागरिकों के अधिकारों का और समानता का ही संघर्ष था, जिसका परिणाम आज हम यहाँ बैठ के संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ये इन सारे लोगों के अपने योगदान से ही बना हुआ है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और फिर डेवलपमेंट दिखता है कि जैसे जैसे रिप्रेजेंटेटिव बढ़ते गए, अंग्रेजों को स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करने पड़े। प्रोविंसेस गवर्नमेंट में इंडियंस की पार्टिसिपेशंस को बढ़ाने के लिए कई सारे रूल्स, लॉ, एक्ट पारित किए गए। 1909 मार्लियामेंटो रिफॉर्म, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 ऑल इंडिया अखिल जो 1935 का अधिनियम आया, अखिल भारतीय शासन अधिनियम 1935। और फिर जो 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत में इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बना ली। ये सरकार 28 महीनों तक चली, तब तक जब तक अंग्रेजों ने बिना पूछे भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं खींच लिया। तो ये सारी चीजें, ये सभी बातें एक साथ चल रही थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की अगर आप बात करें तो पहली बार एडविन मॉन्टेग्यू was the author of the Montagu-Chelmsford Reform 1919, which allowed some form of the representation in the provincial legislative assemblies. मॉन्टेग्यू ने फ्रेमिंग की 1919 को भारतीयों को कुछ अधिकार देने के लिए सदन में किया गया। अब यहाँ पे सोमनाथ लाहिरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट से काफी प्रभावित थे। सोमनाथ लाहिरी कहते हैं स्टेटमेंट आदान का
दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड, नोबल वर्ड्स. That statement, if you will minutely observe about this statement, that is very good sir, bold word and noble word. Somnath Lahiri said, well sir, I must congratulate Pandit Nehru for the fine expression he gave to the spirit of the Indian people, with he said that no imposition from the British will be accepted by Indian people. Imposition would be rescinded and objected to, he said, and he added that if need be, we will walk the valley of struggle. That is very good sir, bold word, noble word. ये जो स्टेटमेंट, जो ये बातें कह रहे थे, कहते थे महोदय पंडित नेहरू को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहकर कि भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे. यह अपने में महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष और आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम संघर्षों की घाटी में उतरेंगे. बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द है, आपका उदात्त शब्द है और आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. लेकिन वो केदारनाथ लाहिड़ी इस बात को सोमनाथ लाहिड़ी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यदि ऐसा हुआ या हमें एहसास हुआ कि भारत की जनता पे कोई कानून थोपा जा रहा है तो हम क्या करेंगे. उन्होंने कहा कि हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे. और वो कहते हैं कि दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड एंड नोबल वर्ड. परंतु देखना यह है, सोमनाथ लाहिड़ी कहते हैं कि देखना यह है कि चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं. महोदय, मसला ये है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है. न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना पड़ेगा या वहां इंग्लैंड जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या किसी और की देखरेख पर दस्तक देनी पड़ेगी. केवल यह सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूक, ब्रिटिश सेना और उनके आर्थिक वित्तीय शिकंजे के साथ में है. इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी भी तय नहीं हुआ, जिसका अर्थ ये निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरीके से हमारे हाथों में नहीं है. इतना ही नहीं, हाल ही में इटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में भी यह स्पष्ट हो गया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे. महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई भी स्वतंत्र नहीं है. जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने का स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिलती है. इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने के बजाय अपने शत्रु को देखें जिसके हाथ में अभी भी घोड़ा है और ब्रिटिश साम्राज्य को देखें और मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े. और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दांव का हल ढूंढ सकते हैं. ये सारा क्वेश्चन, ये सारा फ्रेमिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कर रहे थे सोमनाथ लाहिड़ी. निश्चित रूप से स्टेटमेंट पंडित सोमनाथ लाहिड़ी का एक बड़ा ही बोल्ड क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने. इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको उत्तर दिया, ऐसा कि मैंने
पहले कहा कि पंडित जवाहरलाल कहते हैं कि सिर्फ सरकारी कागजों से सरकार नहीं बनती। सरकार बनने के लिए जनता की अभिव्यक्ति, जनता की ताकत, जनता की शक्ति होनी चाहिए। हमारे पीछे हमारे जनता की शक्ति है और हम जितनी दूर तक जाएंगे उसके पीछे भी हमारे जनता के लोगों का हाथ होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी ग्रुप, किसी भी समूह के क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई हुई उनकी आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं की कद्र करते हुए संविधान के निर्माण में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी जनता के लिए उपयोगी हो। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अभी ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए था? ये सोमनाथ लाहिरी के दिए गए वक्तव्यों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंसर था। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इन फैक्ट एज द डिमांड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ग्रीव द ब्रिटिश हैड बीन फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। A number of acts were passed 1909, 1919 and 1935, gradually enlarging the space for Indian participation in the provincial governments. The executive was made partly responsible to the provincial legislature in 1919 and almost entirely so under the Government of India Act 1935, when elections were held in 1937. Under the 1935 Act, the Congress came to power in 8 out of the 11 provinces, and yet we should not see unbroken continuity between the earlier constitutional development and what happened in their year from 1946. While the earlier constitutional experiment were in response to the growing demand for a representative government. The Act 1999, 1919, 1935 were not directly debated and formulated by Indians. They were enacted by the colonial government. The electorate that elected the provincial bodies had expanded over the years, but even 1935 it remained the limited to no more than 10 to 15% of the adult population. There was no universal adult franchises. The legislatures elected under the 1935 Act operated within the framework of colonial rule and were responsible to the government operated by the British. The vision Nehru was trying to outline the 13th December 1946 was the Constitution of the Independent Sovereign Republic of India. यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन बात के कहने के बाद उन रिफॉर्म पे चर्चा की गई है, उन चुनावों पे जिसमें भारत के लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। कह रहे इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 के अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं का स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानून जो बने पास हुए 1999, 1919, 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार में ही लागू किया गया था। इन नियमों, इन कानूनों को जो संवैधानिक सुधार थे अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे थे, इस संवैधानिक सुधारों को जो पारित किया गया वो अंग्रेजों के द्वारा ही पारित किया गया था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया है, कहते हैं कि अगर बात करें इन चीज़ों पे तो 99, 1999 और 1935 को पारित करने की प्रक्रिया भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी और उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही, ये कॉलोनियल इंपीरियल रूलर्स ने ही लागू किया था।
प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुए, प्रांतीय निकायों का जो चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था। लेकिन 1935 में भी यह भी अधिकार वयस्क आबादी एडल्ट 10 to 15% एडल्ट तक की लिमिट कर दिया गया। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। एक लॉजिकल वे से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ लाहिड़ी के स्टेटमेंट को खारिज किया, काटा। उन्होंने कहा कि जो भारत में संविधान बन रहे हैं, इनका निर्माण हो रहा है, ये निर्माण, ये कहना आसान है कि हम अंग्रेजों के सुपरविजन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के इसके पहले के स्टेप उठे 1919, 1919, 1935, उस समय भारत में कोई भी किसी के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो इन बातों को रखे। सारे कानून ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही पारित किए गए थे, इंपीरियल रूलर्स नहीं पारित किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगर आप देखें कहते हैं कि कहते हैं कि वर नॉट डायरेक्टली डिबेटेड एंड द फॉर्मुलेटेड इंडियंस they were enacted by colonial government. The electorate that elected the provincial bodies had expanded over the year, but even in 1935 it remained limited, no more than 10 to 15% of the adult population. There was no universal adult franchises. The legislatures elected under the 1935 Act operated within the framework of the colonial rule and were responsible to the governor appointed by the British. The vision that Nehru was trying to outline on the 13th December 1946 was of the constitution of an independent sovereign republic of India. इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि 1935 के कानून के तहत निर्वाचित जो विधायिकाएं थी औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। लेकिन 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु और भारतीय सरकार की कल्पना थी। एक ऐसी गवर्नमेंट जो इंडियंस की हो, बाय द इंडियंस, टू द इंडियंस एंड फॉर द इंडियंस। That type of imaginations came in the mind of Pandit Nehru. Even he aware of that in the previous year some constitutional reform done by the imperial rulers 1999, 1935, 1919. These are all constitutional act passed. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विचार थे वो निश्चित रूप से एक भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान की बात कर रहे थे। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। That's why I am saying the constitution which was going to frame by constituent assembly members, it means the Indian constitution would be to the Indians, by the Indians, for the Indians, which is based on the expectations, emotions, feelings of the Indians. Constituent assembly members have to what? कि अपने जहन में इस चीज को रखना पड़ेगा, भारतीयों की इच्छाएं और उनकी आकांक्षाओं को। थर्ड टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, डिफाइनिंग राइट्स।
defining rights. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग राइट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम उन चीजों को देखेंगे जिसके आधार पे संविधान में नागरिकों को किस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, जिन पे चर्चा होगी। नागरिकों के अधिकार किस तरह से निर्धारित किए जाए। आई मीन टू से दैट हाउ वर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन टू बी डिफाइंड। Were the oppressed group to have any special rights? What right would minorities have? Who in fact could be defined as a minority? As the debate on the floor of the Constituent Assembly unfolded, it was clear that there were no collectively shared answer to any of these questions. The answer were evolved through the clash of opinions and the drama of the individuals' encounters. In his language, the inaugural speech, Nehru had invoked the will of the people and declared that the mark of the heart of the masses. This was no easy task. With the anticipations of the independence, different groups expressed their will in the different way and made different demands. These would have to be debated and the conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forged. Defining rights. This is the very important topic points. Why? Because here a lot of questions arise in the mind of Constituent Assembly members, because they are going to discuss on that matter which is important for the common people of the India. Because this is important for the Constituent Assembly members that they were going to discuss the right of the depressed class people, right of the minorities. इन चीजों पे चर्चा करने जा रहे थे। कह रहा है नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाए। क्या उत्पीड़ित समूह को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं कि जिस पे पूरी सभा एक मत हो, सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने वाले थे। अपने उद्घाटन भाषण में, इनॉग्रल स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है और यह कोई आसान काम नहीं है। जैसे जैसे आजादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना भी जरूरी था। If you will minutely observe about that line of Pandit Nehru, that what he say, what he emphasized, Nehru had invoked the will of the people and declared that the makers of the constitution had to fulfill the passion that lie in the heart of the masses. This was no easy task. With the anticipations of the independence, different groups expressed their will in a different way and made different demands. These would have to be debated
and conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forged. तो इस आधार पे आपने ये समझना है कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से हमको लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों के विचार, लोगों के अपने अधिकार को एक्सप्लेन करना हो. Even he was aware that we are going to discuss the very conflicting and disputed matter. There are the various type of view, various type of thoughts that evolve. बाहर आएगा, came out from the discussion. He was aware, but he clearly instruct and inform the Constituent Assembly members कि हमें निश्चित रूप से इसमें काफ़ी अलग अलग तरह की इच्छाएं व्यक्त करने लगेंगे लोग, और सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक लास्ट सॉल्यूशन पे पहुंचना है. दैट विल बी फाइनल सॉल्यूशन. और यहां तक उन्होंने एक तरीके से क्या था, एक तरीके से अब जो डिफाइनिंग राइट्स को एक्सप्लेन करना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक फ्रेमवर्क दे दिया. फ्रेमवर्क इट मीन्स एक बाउंड्री बनानी, फ्रेमवर्क, एक फ्रेम दिया कि आपको इसी फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करना है. तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द प्रॉब्लम विथ द सेपरेट इलेक्टोरेट. गुड बाय एंड टेक केयर.